آغاز میں تذکرہ وزیر اعظم عمران خان کا، جن کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں بھارت سے تجارت کشمیریوں سے غداری ہوگی، یک طرفہ اقدامات کی واپسی تک تجارت ناممکن ہے۔ افغانستان میں انتشار کی صورت میں دہشت گردی میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان اور تاجکستان کو یکساں چیلنجز کا سامنا ہے۔ 1000 ارب ڈالر ترقی پذیر ممالک سے باہر جاتا ہے۔ پاکستان سے جو کنیکٹیوٹی ہے گوادر کے لیے، ان کے لیے بھی آسان ہوگا، ہمارے پاکستان کے لیے بھی اس کنیکٹیوٹی سے ٹریڈ ٹائز ہماری اور بڑھ جائیں گے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغان میں امن ہو۔ اگر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہوئی افغانستان میں تو پھر یہ خدشہ ہے کہ جب سوویٹ چھوڑ کے گئے تھے افغانستان کو 1989 میں، اس طرح کا صورتحال نہ پیدا ہو جائے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے باقی ملکوں کو بھی ملا کے ساتھ کہ افغانستان کے اندر پیسفل سیٹلمنٹ بہت ضروری ہے۔ پہاڑوں کے اس طرف تاجکستان ہے، اس طرف پاکستان ہے، گلیشیئرز سے پانی ادھر بھی آتا ہے، ادھر بھی آتا ہے، اور اگر یہ گلوبل وارمنگ کے اوپر ساری دنیا اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرے گی تو یہ ہم دونوں ملکوں کو خطرہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم زیادہ اپنی آواز بلند کریں گے۔ 5 اگست 2019 میں کشمیر پہ یونیلیٹرلی ایک قدم اٹھایا ہے، یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل اس کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی وائلیشنز کر کے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان سے ٹریڈ نارملائز کریں، کیونکہ یہ بالکل کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی ان سے ہم غداری کریں گے۔ جب تک ہندوستان ریورس نہیں کرتا ہمارے تعلقات نہیں بہتر ہو سکتے۔ اسلاموفوبیا کی 2 خاص وجہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے فریڈم آف سپیچ کے نام پہ، اسلام کو جوڑ دیا جاتا ہے ایکسٹریمزم سے، یہ دوسری وجہ ہے، جبکہ دنیا میں اور کسی مذہب کو نہیں جوڑا جاتا دہشت گردی کے ساتھ۔ 1000 ارب روپیہ ڈیولپنگ ورلڈ سے جاتا ہے آف شور اکاؤنٹس پہ اور ڈیولپڈ ورلڈ پہ۔ تو اس کے لیے یہ نیب کا بھی ضروری ہے کہ ہم ایک آپس میں بھی کوآپریشن رکھیں اور پھر اس کی انٹرنیشنلی بھی اس کی آواز اٹھائیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور تاجک صدر امام علی رحمان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی، جس میں معاشی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر امام علی رحمان نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا اور گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ شوگر، آٹا، منی لانڈرنگ کے ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جعلی اکاؤنٹ سکینڈل کے ملزمان کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اجلاس میں اہم انکوائریز، انویسٹیگیشن، ریفرنس کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی پرویز ملک نیب راولپنڈی کے روبرو پیش ہوئے۔ نیب تحقیقاتی ٹیم نے پرویز ملک سے بطور سابق وزیر تجارت شوگر سکینڈل انکوائری سے متعلق پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے اپنا جواب بھی جمع کرایا۔ پرویز ملک نیب راولپنڈی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے۔ نیب تحقیقاتی ٹیم نے پرویز ملک سے شوگر سکینڈل انکوائری سے متعلق پوچھ گچھ کی۔ پرویز ملک سے بطور سابق وزیر تجارت تمام ریکارڈ بھی طلب کیا گیا تھا۔ ان سے اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس اور انٹرنیشنل سطح پر چینی کی قیمتوں کے تعین کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ پرویز ملک نے نیب تفتیشی ٹیم کو اپنا جواب ریکارڈ کرایا ہے۔ نیب شوگر انکوائری کیس میں پنجاب کے صوبائی وزراء میاں اسلم اور محسن لغاری کو نیب راولپنڈی نے 4 جون کو طلب کر رکھا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے معاملے پر حکومت اور شہباز شریف میں معاملات کھلی عدالت میں طے پا گئے۔ شہباز شریف نے توہین عدالت کی درخواست کی پیروی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وفاق کی درخواست واپس لینے پر سپریم کورٹ نے اپیل نمٹا دی۔ عدالت نے کہا کہ شہباز شریف کو جس انداز میں ریلیف ملا وہ کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا نام اب ECL پر ہے اور شہباز شریف نے اپنی پٹیشن ہائی کورٹ سے واپس لے لی ہے، جس کے بعد تکنیکی بنیاد پر سپریم کورٹ میں حکومتی اپیل کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف سے متعلق اپیل کا مقصد پہلے ہی پورا ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ، سپریم کورٹ نے بھی لاڈلے رتن کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کا ٹویٹ، لکھا کہ ویسے حکومت کے 2 ٹوک فیصلے کے بعد موصوف نے ہائی کورٹ سے اپنا مقدمہ ہی واپس لے لیا تاکہ سپریم کورٹ میں حکومتی اپیل غیر مؤثر ہو جائے۔ مطلب پہلے ملک سے بھاگ رہے تھے، اب عدالتوں سے بھاگ گئے۔
सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात को कल तलब कर लिया। खुर्शीद शाह के बेटे फारूक शाह को भी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह समेत तमाम मुल्जिमान को भी पेश होने का हुक्म। अदालत ने हिदायत की कि जिन मुल्जिमान को जमानत मनसूखी के नोटिस हुए वो सब कल हाजिर हों। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि बदकिस्मती से हुकूमतों के बदलने से नैब के रवैये में भी झुकाव आता है। बहुत से मुकदमात में नैब ने अपीलें तक दायर करने से इनकार कर दिया। आम पटवारियों के मुकदमात में नैब अपील किए बगैर रुकता नहीं। आज भी अपनों के मुकदमात एंटी करप्शन को दिए जाते हैं जो मुखालिफ होता है। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जो है उसकी यकसा फराहमी की जिम्मेदारी का जो मैंडेट हमें अवाम ने दिया, हमने उसकी पासदारी को यकीनी बनाना है। तो लिहाजा ये जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई उसके अंदर जो था, आज चूँकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन के हवाले से जो रिस्पोंडेंट थे, जो PMLN के वकला थे, उन्होंने अदालत को ये यकीन दहानी कराई कि हम किसी कंटेम्प्ट में नहीं जा रहे, क्योंकि उन्होंने ये फाइल किया था कि उनको रोका गया, लिहाजा ये कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अदालत के ये रिमार्क्स थे कि इस केस को, शहबाज शरीफ के केस को आप जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे कि जितनी तेज़ी से, जितनी फुर्तियों से, अफरा तफरी में वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ, तो ये कोई अच्छी मिसाल नहीं थी जिस हवाले से अदालत ने अपने रिमार्क्स दिए कि ये बाकी किसी केस के लिए प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। और जब ये सारा प्रोसेस एमिकेबली वहाँ डिस्कस हुआ तो हमारे वकला ने वहाँ उसको विथड्रॉ कर लिया, क्योंकि अदालत ने ये हदायत दी कि इसको जो है वो एक्सपीडाइट किया जाए इस केस के ट्रायल को, और जल्द अज जल्द इस केस को जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है उसको निपटाया जाए। और जब उस केस को निपटाने की कमिटमेंट, ज़ाहिर है हम तो चाहते हैं कि जल्द चोर जो है वो काफिर किरदार को पहुँचे। हम तो चाहते हैं कि जिसने डाकाज़नी की है और डकैतियाँ की हैं वो कानून उनको अपनी गिरफ्त में ले। तो लिहाजा हमें जो हम चाहते हैं कि इस केस में एक्सपीडाइट करके हर तरह के गवाहान और उसके साथ जुड़ा जो लीगल प्रोसीजर है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। तो जब ये सारा कंसेंसस हुआ तो फिर हमने एप्लीकेशन वापस ले ली, क्योंकि उस एप्लीकेशन का ना केस से ताल्लुक़ था और ना ऑनवर्ड जो है वो आपकी उनकी चूँकि ECL पे नाम है उसको डालने का भी एक और तरीका अदालत का उस हवाले से कोई हमें रिकमेंडेशंस नहीं थी। तो इस वजह से वो विथड्रॉ हुई एप्लीकेशन। तो लिहाजा जिन चैनल्स पे कुछ हुकूमती गठजोड़ की बात हो रही है तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि गठजोड़ हुकूमत उनसे क्या करेगी जिस इत्तेहाद का अपना जो है वो रेजा हो चुका है और मीम शीम जो है वो उसका वैसे ही सफाया हो चुका है। और जो मौलाना साहब की भड़कें उनमें वो ना शिद्दत रही है ना जिद्दत रही है और ना वो सुनने के और सुनाने के मूड में है कोई कि वो उनकी इस आप बीती को सुने। तो लिहाजा हुकूमत को किसी सूरत भी किसी ऐसे ना इत्तेहाद से ख़तरा है ना किसी गठजोड़ से ख़तरा है। हाँ, हुकूमत की तरजीहात जो हैं ये जितने इदारे हैं, हुकूमत ये चाहती है कि इनकी तबाहाल सूरत हाल से इनको निकाल के इन इदारों को अपने पाँव पे खड़ा करें और रिफॉर्म्स की तरफ जाएं और इनको ऑटोनमस बनाएं। इनको फिनंशियल ऑटोनमी के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनमी दस्तयाब है उसका कानून के मुताबिक दुरुस्त जो है इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए और अदारे फंक्शनल होंगे, ऑपरेशनल होंगे, कानून के मुताबिक काम करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम के दुखों का मदावा होगा। और जिस मकसद के लिए वो अदारे बनाए गए हैं अवाम यकीनन उन इदारों के फिर पीछे खड़ी होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। ज़िशान आया
आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीटीआई मामूली तनख्वाहों वालों पर मुआशी बोझ डालना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आम आदमी को मुआशी तौर पर कुचलने की साजिश नाकाम बनाएगी। इमरान खान अमीरों को एमएनएसटी स्कीम्स और गरीबों से टैक्स वसूली करके अवाम दुश्मनी साबित कर रहे हैं। पीटीआई हुकूमत के मुआशी जराइम कभी माफ नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा, IMF मुलाजिमों से बजट तैयार कराने वाले इमरान खान बताएं मुआशी टीम कहां पर गई। चौथा बजट पेश करने से पहले इमरान खान तीसरा वजीर खजाना, 5वां सेक्रेटरी तिजारत ले आए और इसका हेर फेर करके इमरान खान अपने मदाहों से तो वाह वाह समेट सकते हैं, मगर अवाम उनके मुआशी खुशहाल के झांसे में नहीं आएंगे। नए माली साल का बजट अवाम दोस्त होगा। वजीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात फरूख हबीब ने बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बिलावल साहब, आपके पेट में अवाम का नहीं इक्तदार का दर्द है। सिंध में गुज़श्ता कई दहाइयों से कोटा सिस्टम पर अमल ना हो सका। सिंध के गुंजान आबाद इलाके कचरे और सीवरेज के पानी से भरे पड़े हैं, लेकिन सिंध हुकूमत इन हालात को दूर करने में संजीदा कदम करती नजर नहीं आती। उन्होंने इस्तफसार किया कि बिलावल साहब, सिंध में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? कराची के सरकारी तालीमी इदारों की हालत क्यों खराब है? महकमा बल्दियात, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू, लैंड, सेहत, शोबा तालीम की हालत इज़ार क्यों खराब हुई? तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत आए 1000 दिन हो गए। इमरान खान ने 100 दिन में तब्दीली का वादा किया था। 1 करोड़ नौकरी का वादा वफा न हुआ। रोजगार छीन लिया। बनी गाला का घर रेगुलराइज हुआ। किसान और गरीब के घर छिन गए। पीटीआई की हुकूमत को आए हुए अब 1000 रोज हो गए। खान साहब ने अपनी तब्दीली का वादा 100 रोज के अंदर करने का ऐलान किया था। 1 करोड़ नौकरियों का वादा वफा नहीं हुआ कि लोगों से रोजगार छीन लिया गया। 50 लाख घर लोग ढूंढ रहे हैं। IMF की तरफ नहीं जाऊंगा। मईशत को ऐसा मजबूत किया कि इस वक्त इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हो या हमारे अपने पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हो, परेशान है। 3 साल तक तबाही करते रहे। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहे। बेरोजगारी है, गुर्बत है, इफलास है। अब ये कहते हैं कि 3.94% हमारी GDP हो गई है। खान साहब से पूछे कोई GDP क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है ग्रैंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान है। कंफ्यूजन है इनकी हुकूमत में। बजट पेश करने से 10 रोज पहले सेक्रेटरी खजाना तब्दील हो गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब होगी जब ये यू टर्न्स का सिलसिला खत्म हो। जब इनकी हुकूमत आई थी, पाकिस्तान का सर्कुलर डेट 1.1 ट्रिलियन रुपीस था। आज वो सर्कुलर डेट आपका 2.5 ट्रिलियन पे खड़ा हुआ है। 1000 रोज में आपने 1.4 खरब रुपए एक्सटर्नल डेट में इजाफा किया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, ऑल इज वेल। शहबाज शरीफ का ट्वीट में कहना है कि हुकूमत इन दिनों मखसूस अदादो शुमार दिखाने में मसरूफ है। इसका मकसद मईशत की बद इंतजामी छुपाने और मुतबादिल हकीकत की तामीर करना है। कोई भी इन पर यकीन करने को तैयार नहीं है। महंगाई में इस तरह के इजाफे की मिसाल नहीं मिलती। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि चोरों के टोले ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कल ये सेमिनार करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है डूबती हुई मईशत। ये लोग मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा $20 अरब करंट अकाउंट खसारा छोड़कर गए। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शुजात पर ड्रामे की शूटिंग के दौरान गोलियां चल गईं। इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर शाह, क्या वाकया पेश आया वहां पर? डिफेंस फेज 7 खयाबान शुजात है जहाँ पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें 7 अफराद जख्मी हुए हैं। SSP साहब जुबैर नजीर शेख से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि ये एक निजी TV चैनल का प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पर ड्रामों की शूटिंग वगैरह होती है। तो उसमें एक जो एम्प्लॉइज है उनका एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसका नाम गुल भाई है, उससे उनकी तल्ख कलामी हुई है। जिसके बाद 21 साल सिक्योरिटी गार्ड है जिसका ताल्लुक शिकारपुर से है, उसने अचानक से उनके ऊपर जो रिपीटर है उसके फायर खोले, जिससे कई जो 7 मुलाजमीन थे निजी चैनल के उनको पैलेट्स लगे हैं, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए जिनको प्राइवेट गाड़ियों के जरिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सीमी जमाली की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है। उनका कहना है कि जितने अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया था उन तमाम को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको खतरा हो। तमाम खतरे से बाहर है, स्टेबल हैं। और उन पुलिस का ये कहना है कि फौरी तौर पर वाक़े के बाद इस सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया था, जिसे थाने मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि पुलिस की नफरी भी जाए वगैरह पहुंच चुकी है और मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी ठीक है, इस गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है और ये बताना है कि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। बहुत शुक्रिया आपका नजीर शाह।
वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तो खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब से मोने सिलाही की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द में सालिक हुसैन, सूबाई वज़रा अमार यासिर और मोहम्मद रिजवान शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। मायूसी का शिकार अपोजिशन अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। इत्तेहादी जमात से बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। 11 जून को पेश किए जाने वाले बजट के कदोहाल सामने आ गए हैं। जरा इस हवाले से क्या बताते हैं, ये बताएंगे लईकुर रहमान। कहिएगा लईक। जी, वफाकी बजट 11 जून जुमा को पेश करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसमें जो सबसे बड़ी और अहम बात सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़ सामने आई है और साथ ही ये भी तजवीज़ दी गई है कि तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। बजट का मजमूई तौर पर जो आउटले है वो 8400 अरब रुपए के लगभग होगा और सालाना तरक्याती प्रोग्राम जो कि PSDP है उसे 900 अरब रुपए तक तकरीबन फाइनल कर लिया गया है। इसके साथ साथ पेंशन की मद में 470 अरब रुपए रखे जाने और जारी अखराजात के लिए 500 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ सामने आई है। सब्सिडीज की मद में 400 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे और ये भी सामने आया है कि दिफाई बजट के लिए 1300 अरब रुपए से कुछ जायद रखे जाएंगे, यानी कि उसमें भी कोई ज्यादा इजाफा नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब टैक्स वसूलियों का जो हदफ है उसके हवाले से इतला सामने आ रही है कि 5700 से 5900 अरब रुपए तक की टैक्स वसूलियों का हदफ रखा जाएगा, जो कि एक एग्रेसिव टारगेट साबित होगा। जी शुक्रिया लईक। कोरोना सिचुएशन मुल्क में इस वक्त क्या है, ये आपसे शेयर करते हैं। हुकूमती इकदामात की वजह से कोरोना का जोर टूटने लगा है। 24 घंटे में मुल्क में कोरोना के 47,183 टेस्ट किए गए हैं। 1,843 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। कोरोना से मुतासिर मजीद 80 अफराद चल बसे हैं। अब तक कोरोना से कुल अमवात 20,930 हो चुकी हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि आज NCOC का पाकिस्तान के अहम चैम्बर्स के साथ खुसूसी इजलास हुआ। कारोबारी बरादरी हुकूमत से मिलकर वैक्सीनेशन मुहिम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जिस पर मैं तमाम कारोबारी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है कारोबारी बरादरी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मईशत की बहाली में मदद करेगी। और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात कब होंगे, फैसला वज़राए तालीम आज करेंगे। आज होगा इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम का इजलास, जिसमें बोर्ड इम्तिहानात से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। इजलास में कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए तमाम तालीमी इदारे खोलने या ना खोलने का फैसला भी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर इक़दामात से कामयाबी हासिल की। मुल्क में सयाहत के फ़रोग के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। Pakistan's coronavirus is less than 4%. This is a huge and remarkable achievement of the government of Pakistan and the people of Pakistan that despite all odds today Pakistan economy is growing nearby 4% rate, where we would like people to come to Pakistan and see this beautiful country of ours, misunderstood by many. We have a huge tourist resources at our disposal. We have remarkable history on our side. Let people come and enjoy Pakistan. मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं